And we continue now with a series of faith. अब हम ईमान का सिलसिला तालीम जारी रखेंगे। Lesson number 4, what is faith? सबक नंबर 4 है ईमान क्या है। We're advancing to the thought now of the question, what is faith? अब हम इस ख्याल की तरफ बढ़े हैं, इस सवाल की तरफ कि ईमान क्या है। In the very first lesson, we stated what faith is. It is पहले सबक में हमने ये बयान किया था कि ईमान क्या है। a gift of God. ये खुदा की नेमत है। We're now going to be a little more specific about this wonderful thing called faith. अब हम इस खूबसूरत हकीकत जो ईमान है इसके ऊपर थोड़ा सा और गौर करेंगे। We're going to push further and further into the subject of faith. हम ईमान के मौजू में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। What is it? It is imperative that I know the answer to this question. ये क्या है? ये बड़ा जरूरी है कि मैं इस सवाल का जवाब जानूं। Because God says, without faith, it's impossible to please Him. क्योंकि खुदा फरमाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। And whatever is not of faith is sin. और हर वो चीज जो इत्काद से जो कुछ इत्काद से नहीं वो गुनाह है। Again in the book of Hebrews, God says, और इब्रानियों की किताब में खुदा फरमाता है, He that cometh to God must believe that God is. इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। The writer of the book of Hebrews says, without faith it's impossible to please God. इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि खुदा को बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। Now for our text, we're going to read Hebrews chapter 11 verse 1. अब हम आज के विर्द के तौर पे इब्रानियों 11वां बाब पहली आयत पढ़ेंगे जो कि इस तरह से है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। The word faith is translated from a Greek word which is axiomatic. ईमान का लफ्ज एक यूनानी लफ्ज का तर्जुमा है और यूनानी लफ्ज है एक्सियोमेटिक, Meaning it's self-evident. इससे मुराद ये है कि ये बात वाज़े है। Once you realize its meaning, then it is not ambiguous. जब आपको इसके मानी का एहसास हो जाए तो फिर इसमें कोई भी बात जो है वो गैर वाज़े नहीं रहती। That just says the word always meant the same thing and was self-defining. ये लफ्ज जो है हमेशा इसका एक ही मतलब रहा है और ये अपनी वजाहत खुद करता है। Faith is an act based upon a belief. ईमान पर यकीन पर मबनी एक अमल है। An act that is sustained and supported through a confidence of continued praying. ऐसा फेल जो कि जारी रहने वाली दुआ पर एतमाद और उसके वसीले ही से कायम रहता है। Now, any expression that falls short of that, कोई भी इजहार जो इससे कम कर रह total जाए, meaning does not qualify as faith. वो ईमान हो नहीं सकता। No faith until an action begins. कोई ईमान हो नहीं सकता जब तक काम शुरू ना हो जाए। In thy light, God said, there is light. खुदा फरमाता है कि तुम्हारी रोशनी में रोशनी है। Unless you're willing to step in to what you see to be of God for your life, जब तक अपनी जिंदगी में आप जो कुछ खुदा की तरफ से है वो करने के लिए तैयार ना हो, then there's no light going to come. तो कोई रोशनी पैदा नहीं होगी। That light is the action of faith. वो रोशनी ईमान का फेल है, अमल है। Action without which there is no faith. वो अमल जिसके बगैर ईमान का वजूद हो नहीं सकता। It's an action energized and sustained by belief and confidence. ये वो अमल है जो कि अपनी कुव्वत, अपनी तवानाई, एतमाद और यकीन में पाता है। Faith involves confidence of mind, the heart, and the will. ईमान में हमारे जहन, हमारे दिल और हमारे इरादे का एतमाद शामिल है।
in unwavering trust and continual believing. और बगैर किसी शक के जो यकीन है वो उसमें पाया जाता है। Now, in the abstract, faith could have many objects. ईमान के कई मफूल हो सकते हैं। There could be faith in the action itself. ईमान खुद अमल में नजर आ सकता है। Faith in faith, faith in positive confession. ईमान में ईमान या मुस्बत इकरार में ईमान, Faith in positive thinking, faith in somebody else's faith. मुस्बत सोच में ईमान या किसी और शख्स के ईमान में ईमान। In the abstract, the word faith, until New Testament days, तजरीदी तौर पे लफ्ज जो है नए अहदनामे के दिनों तक ईमान, involved the believer. इसमें ईमानदार की शमूलियत है The subject involved the act of believing, और फाइल जो है उसके साथ काम करने पर, उस अमल पर ईमान है, यकीन है। and you could pick and choose your object. और आप अपने माफूल को चुन सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। But when God set forth His word, He said, लेकिन जब खुदा ने अपना कलाम कायम किया तो उसने फरमाया, I'm going to take this word faith and make it mine. मैं इस लफ्ज ईमान को लूंगा और इसे अपना बनाऊंगा। Then I'm going to look for believers who will perform the act of believing. फिर मैं ऐसे ईमानदार ढूंढूंगा जो कि इस ईमान लाने के अमल का काम करेंगे। But God will only allow one object to qualify. लेकिन खुदा सिर्फ एक मफूल को इजाजत देगा कि वो मेयार पे पूरा उतरे, And that is God and His faithfulness to His word. और वो है खुदा और खुदा के कलाम की फरमाबरदारी। Nothing else will qualify as an object for the faith of God. खुदा के ईमान के लिए कोई और चीज मेयार पे पूरी नहीं उतर सकती। God arbitrarily picked the word faith out of the Greek language and made it His. खुदा ने यूनानी जुबान में से ये लफ्ज ईमान ले लिया और इसे अपना लफ्ज बना लिया। Every other believing action may be called faith, but it is faith in faith or faith in self. इसके अलावा और कोई भी ईमान का जो अमल है वो ईमान में ईमान या खुदी पर ईमान कहलाया जा सकता है। There's one object that God will dignify with the word faith. एक ही मफूल है जिसको खुदा ईमान के साथ उसका मुआजना करेगा, उसको ईमान करार Any देगा। other object puts a little word A in front of it, कोई और मफूल जो है वो अपने उसके सामने अंग्रेजी का हर्फ ए लिखेगा, which reverses the action and calls it apista. जो कि उस सारे अमल को उलट कर देता है और उसको अपीस्ता कहा जाता है। The word pista is faith. Apista लफ्ज पीस्ता जो है वो ईमान है और लफ्ज आपीस्ता, Apista may have all the pragmatic values. इसमें तमाम अमली अकदार शामिल हो सकती हैं। You may be happy, good, have a good self-esteem, मुमकिन है कि आप खुश हों, अच्छे हों, आपकी अपने बारे में अच्छी राय हो, but God says it's not faith. लेकिन खुदा कहता है कि ये ईमान नहीं है, It's apista, ये अपीस्ता है। meaning going away from faith in God. इससे मुराद है खुदा में ईमान से दूर जाना। The basic foundation of the universe is God's word. पूरी कायनात की जो बुनियाद है वो खुदा का कलाम है। Hebrews 11:3 states here, इब्रानियों 11:30 की आयत में लिखा है, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। God spoke and nothing became everything. खुदा ने फरमाया और कुछ नहीं, सब कुछ बन गया। From nothingness, God's word spoke into existence everything that you see. कुछ नहीं में से खुदा के कलाम ने इन सारी चीजों को वजूद में बुला लिया जो आप इर्द गिर्द देखते हैं। That is the foundation of faith. ये ईमान की बुनियाद है। God is not a man, said Moses, that he should lie.
मूसा ने कहा कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ Numbers बोले। 23:19. Hebrews 11:6 said, "For he that cometh to God must believe that God is." और इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि वो जो खुदा के पास आता है जरूर है कि वो ईमान रखे कि खुदा है। If God could lie and did lie, this universe would fall apart. अगर खुदा झूठ बोल सकता और उसने झूठ बोला होता तो ये पूरी की पूरी कायनात मुंतशिर हो जाती। When God created man and placed him in that garden, जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया और उस बाग में इंसान को रखा, his words to man were, तो खुदा का आदम के लिए कलाम ये था, talking about the tree of knowledge of good and evil, नेकी और बदी के दरख्त की बात करते हुए, in the day you eat thereof you shall die. Genesis पैदाइश 2 बाब 17 आयत में लिखा है, जिस रोज तूने उसमें से खाया तू 2:27. मरा। 6,000 years later, man is still dying. 6000 साल बाद इंसान आज भी मर रहा है। I don't know where you live. I can tell you this graveyard there somewhere. मुझे पता नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं कब्रिस्तान The मौजूद devil है। told that same man, इब्लीस ने उसी शख्स को बताया, God आदम को lied to बताया, you. खुदा ने तुझसे झूठ You बोला, will not die, you become like God. तू मरेगा नहीं बल्कि खुदा जैसा हो जाएगा। 6,000 years later, he's still not like God. 6000 साल गुजर गए, अब भी इंसान खुदा की इमारत नहीं बन सका। We took the word faith in the New Testament हमने नए अहदनामे में ईमान के लफ्ज को लिया and took a partial word and applied belief to the verbal action of function, what should be called faithing. और हमने उसका जुज़वी मानी ले लिया और उसका इतलाक लफ्ज यकीन पे किया और उसको एक जुज़वी शक्ल में देखना शुरू किया। We then produced a people who sat around, believed, and never acted. इस तरह से हमने ऐसे लोग पैदा कर दिए जो कि बैठे ईमान तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं करते। The terrible tragedy is they think they really have faith. और एक कलमनाक बात यह है कि वो सोचते हैं कि उनके पास दरअसल ईमान है। And if you can only be saved through faith, और अगर आप सिर्फ ईमान ही के वसीले से बच सकते हैं, you're beguiled and bewitched into an activity that will not save you. और आप ऐसे धोखे की वजह से ऐसी एक सरगर्मी में शामिल हो चुके हैं जो आपको बचाएगी नहीं। The other tragedy is we've made faith a product. और एक और अलमिया यह है कि हमने ईमान को एक पैदावार बना दिया है। Keep the faith, brother. भाई ईमान रखें। We've shoveled something called tradition into our mental baggage cart. हमने रवायत को अपने जहन में शामिल कर लिया है We've memorized, checked it off, and thank God we're true to the faith. और हमने उसको याद कर लिया और फिर खुदा के साथ उसको चेक किया और बस यकीन मान लिया कि हम ईमान पर पूरे उतरे हैं। Now we're ready to shoot anybody down अब हम किसी को भी गिराने के लिए तैयार हैं that would disturb that mental garbage pail. हर वो शख्स जो हमारे इस दिमाग में जो गंद भरा है इसको हटाने की कोशिश करेगा। Because as long as it's not disturbed, we don't have to work at it. क्योंकि जब तक इस सारे गंद को हिलाया ना जाए हमें इस पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। We have robbed faith of its meaning. हमने ईमान के मानी को उससे लूट लिया है। Faith is an act based upon a belief, ईमान ऐसा फेल है जिसकी बुनियाद यकीन है। and until God decided to dip it out of the language stream and make it His, और जब खुदा ने फैसला किया कि जुबानदानी के बहाव में से झील में से इसको निकाल के अपना लफ्ज बनाए, any act based on any belief, कोई भी फेल जिसका किसी भी यकीन पे दारोमदार हो, supported by any competence, qualified as faith. जो कि किसी भी तरह के एतमाद से उसको सपोर्ट मिलती हो, वो ईमान के म्यार पे पूरा उतरता है। But God came down and said there's only one thing that will dignify that word called faith.
खुदा ने उतरकर ये बताया कि सिर्फ एक चीज है जो कि ईमान को ईमान के काबिल बनाएगी, and that is an action based on God's Word. और वो है खुदा के कलाम पर मबनी अमाल। That is to believe that when God says something, God will do that something. यानी ये ईमान कि जब खुदा कुछ कहेगा तो खुदा वो कर दिखाएगा। Faith acts as though what God said is truth. ईमान इस तरह से अमल करता है गोया कि खुदा जो कहता है वो सच है, And is defiant of everything that contradicts it. और हर उस चीज की मुखालफत करता है जो इससे तजाद रखती हो। Action based upon the Word of God, अमाल जो कि खुदा के कलाम पर मबनी हो, supported by confidence in continued action, और जो मुस्तकिल फेल के वसीले से एतमाद के वसीले उसको मजबूती मिलती है when God says it, He'll do it. कि खुदा जो कहता है वो करता है। That is a substance of things hoped for. ये है उम्मीद की हुई चीजों का सबूत। What are the things hoped for? कौन सी चीजें हैं जिनकी उम्मीद की जाती है? The things that God said He would do. वो चीजें जो खुदा ने कहा कि खुदा करेगा। An action. When you see what God has said, that's what gives the hope. एक फेल, जब आप देखें कि खुदा ने कुछ कहा है, इसी से उम्मीद मिलती है। Listen to this in Psalms 119 and 89. ज़बूर 119 उसकी 89 आयत को सुनिए। Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. आए खुदावन तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। Now couple that with Matthew 6 and 10. अब इसे मत्ती 6 बाब 10वीं आयत के साथ इसको जोड़िए। Thy will be done on earth as it is in heaven. तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। True faith will start acting like whatever is settled in heaven हकीकी ईमान उस पर काम करना शुरू कर देगा जो आसमान पर कायम है, is going to operate right here on earth. और जो आसमान पर कायम हो चुका है वो उसके मुताबिक जमीन पर काम करना शुरू करेगा। The minute I start that action, जिस लम्हे मैं इस अमल को शुरू करूं, supported by belief and confidence in God's Word, जो कि खुदा के कलाम पर यकीन और एतमाद रखता है, that then becomes the things hoped for. और ये वो उम्मीद की हुई चीजें बन जाती हैं। Now we're going to get down to what the substance means. अब हम उस बात की तरफ आते हैं कि जौहर से क्या मुराद है। Now listen closely because each word shapes its own meaning. हमें गौर से सुनना है क्योंकि हर लफ्ज जो है वो अपना मानी जो है वो खुद पैदा करता है, बनाता है। The King James people were afraid to use the word transubstantiation. जो किंग जेम्स के पढ़ने वाले लोग हैं वो ट्रांसब्स्टेंशिएशन लफ्ज जो है वो इससे खौफजदा है। Faith is an act based upon the belief in confidence that when God says something, God will do that something. ईमान का फेल जो है उसका इन्हिसार इस बात पर है कि खुदा जब कुछ कहता है तो खुदा वो करता है। Now this faith transubstantiates the things hoped for. अब ये ईमान जो है ये उन चीजों को जिनकी उम्मीद की जाती है उनको हकीकत में बदलता है। Transubstantiation is a crossover. ये जो खुदावन यीशु मसीह का हकीकी बदन है ये हमें समझना है। Now in the Lord's Supper we know the Catholics believe हमें पता है कि कैथोलिक लोग ये ईमान रखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के आखिरी फसह के मौके पर that the wine and the bread become the blood and the flesh of Christ. कि जो शीरा और जो रोटी थे वो हकीकत में खुदावन यीशु मसीह का खून और बदन बन गए। Such a miracle does not happen. ऐसा मौजा वाकई नहीं होता। It remains all it ever was meant to be, an emblem. और ये एक अलामत है। But if that miracle happened, लेकिन अगर ये मौजा वाकई हुआ, the transubstantiation is instant. तो खुदावन यीशु मसीह
कि उस रोटी और शीरे में हकीकी बदन और खून का बन जाना, wine becomes blood, bread becomes flesh. फौरी तौर पे वो बन जाते हैं, और जो शीरा है वो खून और जो रोटी है वो बदन बन जाते हैं। The faith action that Hebrews is talking about ईमान का फेल जिसकी बात इब्रानियों का मुसन्नफ कर रहा है, can be instantaneous and miraculous. वो फौरी और मौजज़ाना हो सकता है। Sometimes miracles of faith are like that. A miracle occurs instantly. माज़ूकात ईमान के जो मौजज़ात हैं वो ऐसे हो सकते हैं, फौरी तौर पे वाक़ई होने वाले, Usually it's prolonged. लेकिन अक्सर इसका इंतजार करना पड़ता है। In fact, in some of the lives of faith, बल्कि दरअसल कुछ ईमान की जिंदगियों में something began in one life and was finished through other lives. कोई बात एक जिंदगी में शुरू हुई और दूसरी जिंदगी में जाके मुकम्मल हुई। What this verse claims is that as long as faith is being expressed, transubstantiation or the crossover continues. और ये आयत हमें ये सिखा रही है कि जब तक ईमान का इजहार होता रहेगा, मसीह यीशु के हकीकी खून और हकीकी बदन का रोटी और शीरे में आना या ये मुंतकिली का अमल जारी रहेगा। As long as faith is maintained, this transubstantiating process is going on. जब तक ईमान जो है वो कायम है, मुंतकली का ये अमल जारी रहेगा। What is hope? उम्मीद क्या है? Hope is whatever is settled in heaven उम्मीद वो सब कुछ है जो आसमान पे कायम हुआ is crossing over into time. और वक्त में मुंतकिल हो रहा है, That's hope. ये उम्मीद है। The substance of heaven's reality is crossing into time आसमान की हकीकत का जौहर वक्त में मुंतकिल हो रहा है and is becoming now what heaven says it is. और अब वो बन रहा है जो आसमान कहता है कि ये है। Faith in the Greek pragmatizes things not seen. ग्रीक यूनानी जुबान में ईमान उन चीजों को जो देखी नहीं गई उन्हें अमली शक्ल देता है। I'm sick. God promises help, but I don't see help. मैं बीमार हूं, खुदा सेहत का वादा करता है लेकिन मुझे सेहत नजर नहीं आती। Pragmatizing is a verb action अमली शक्ल देना जो है ये एक अफाली अमल है that literally means to work out in this seen world जिससे मुराद ये है कि इस देखी दुनिया में काम करना what was formerly not seen. जो पहले देखा ना गया। Faith and acts based upon God's word, ईमान एक फेल है जो खुदा के कलाम पे अपनी बुनियाद रखता है supported by confidence, और एतमाद उसको मजबूत करता है। starts a crossover of things hoped for. ये हमारे अंदर उन चीजों की जो हम उम्मीद रखते हैं उनको मुंतकिल करना शुरू करता है। Starts a pragmatizing, working out on the stage of the seen world what is not seen. ये हमारे सामने ऐसा मंजर पेश करता है, उन चीजों को देखी बनाता है जो अब तक देखी नहीं गई। It was this kind of action based on God's word खुदा के कलाम पे मबनी ऐसा फेल जो है in the face of every circumstance किसी भी तरह की ये हालात में that caused the elders of the Old Testament to obtain a good report. जिसने पुराने अहदनामे के बुजुर्गों की जो रिपोर्ट थी, कारकर्दगी थी, उसको अच्छा बनाया। Look at Romans chapter 4 verse 1. रोमियो चौथा बाब पहली आयत को देखिए। What shall we say then that Abraham our father as pertaining to the flesh hath found? बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ? Not much. If Abraham was justified, कुछ ज्यादा नहीं, that is treated by God as though he was just like God. अगर इब्राहिम की तस्दीक हुई जिससे मुराद है कि खुदा ने उसके साथ ऐसा सलूक किया गोया कि वो तस्दीक शुदा है By his works.
कि वो अपने कामों से रास्तबाज That है। is, if his works made him like God, what did he have to glory? तो अगर उसके काम उसे खुदा की तरह बनाते थे तो उसके पास किस बात में जलाल था? Not before God, because God knew better. खुदा के सामने तो नहीं, क्योंकि खुदा को तो इससे ज्यादा पता है। But what saith the Scripture? कलाम क्या फरमाता है? Abraham believed God, he kept on believing God. इब्राहिम खुदा पर यकीन रखता था और खुदा पे यकीन रखता रहा। He hoped against hope. इब्राहिम उम्मीद के खिलाफ भी उम्मीद में कायम रहा। That action which transubstantiated that hope, that ये फेल जिसने उस उम्मीद को मुंतकिल कर दिया, action which pragmatized things not seen, वो अमल जो उन चीजों को जो देखी नहीं है अमली बनाता है। Abraham maintained that continual action of believing, इब्राहिम इस यकीन रखने के अमल को जारी रखता है, and that believing action was counted unto him as righteousness. और ईमान लाने का यही फेल उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। Now to him that worketh is a reward not reckoned of grace but a debt. Romans 4:4. काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। रोमियो 4 बाब 4 आयत। If your righteousness is by works, अगर आपकी रास्तबाजी अमाल के वसीले है then your reward is measured out in terms of your accomplishing those works. तो उसके बाद फिर आपका जो अजर है वो भी उन्हीं कामों के हवाले से ही होगा। God said that with righteousness comes life. खुदा ने फरमाया कि रास्तबाजी के साथ जिंदगी मिलती है। So if your righteousness is your own product, लिहाजा अगर आपकी रास्तबाजी आपकी अपनी पैदा की हुई है then you get paid by the debt that God owes you. तो फिर आप उसी कर्जे में से आपको अदा किया जाएगा जो खुदा ने आपको देना है। The debt is simple. और वो कर्ज सादा है। You fall short, and in falling short of perfection, the penalty is death. वो ये है कि चूंकि हम रास्तबाज नहीं हैं, पूरे नहीं, गुनाह से पाक नहीं हैं, लिहाजा कामलियत से कम सतह पे होने की वजह से जो सजा है वो मौत है। God can treat the ungodly as though they were godly. खुदा ऐसे लोगों को जो कि दीनदार नहीं है इस तरह से उनके साथ बर्ताव कर सकता है जैसे वो दीनदार हों। To him that worketh not, but believeth on him, he is justified by his faith. वो जो काम नहीं करता बल्कि उस पर ईमान लाता है, वो उसकी तस्दीक जो है वो ईमान के वसीले होती है। That simply means that a person's faith is accounted unto him for righteousness. इससे मुराद बस यही है कि किसी शख्स का ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। You can't be perfect, but you can have faith. आप कामिल नहीं हो सकते लेकिन आप ईमान रख सकते हैं। Now, the slightest missing of the mark, निशान से जरा सा हटना भी, when perfection is the way you get in, means you're ruled out. अगर आप कामिलियत के हवाले से अंदर आना चाहें तो इसका मतलब है कि आप तो बाहर निकाल दिए जाएंगे। But the smallest expression of faith strikes the connection with God, लेकिन ईमान का एक छोटा सा इजहार भी खुदा के साथ ताल्लुक पैदा करता है, where God can give righteousness as a gift. जब जिसके नतीजे में खुदा रास्तबाजी एक तोहफे के तौर पे दे सकता है हमें। When you have it, you'll be clean and holy. जब आपके पास ये God नेमत does होगी आप justify पाक the ungodly. साफ होंगे और खुदा बेदीनों को की तस्दीक करेगा। But that does not mean that God will not affect your lifestyle. लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि खुदा आपके तर्ज जिंदगी को तब्दील नहीं करेगा। God puts His Spirit in you as a gift. खुदा अपना रूह नेमत के तौर पे आप में रखता है। That's His life. That's His substance. ये उसकी जिंदगी, उसका जौहर है। And His substance literally crosses over and becomes unto us life. और उसी का जौहर हमारे अंदर मुंतकिल होता और जिंदगी बन जाता है। That is God's promise of faith. ये खुदा का वादा है ईमान। Perfection is simply not totally obtainable, but faith is. कामलियत तो हम हासिल नहीं कर सकते लेकिन ईमान कर सकते हैं। The currency of heaven
will be faith tried in the fire, आसमान में इस्तेमाल होने वाली करेंसी जो है वो आग से आजमाया हुआ ईमान है, being much more precious than gold जो कि सोने से ज्यादा कीमती है, that been tried of fire. जो कि आग से आजमाया हुआ है। Heaven is the endless pursuit of obtaining what God intended for man to have, आसमान वो चीज है जो कि खुदा चाहता है कि इंसान हासिल करे, and of what God intended the man to be when he made him. और ये वो है जो खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो खुदा चाहता था कि इंसान पाए। Whatever God's plans were, Satan set him back. खुदा का जो भी मंसूबा था इब्लीस ने उसको खराब कर दिया, And then on earth, man set him back a little further in the fall. और फिर जमीन पे बिगाड़ के वसीले से इंसान ने और ज्यादा अपने आप को उससे दूर कर लिया। In redemption, God is simply setting the stage to do it all over. मखलसी के वसीले खुदा दोबारा से हमारे लिए मुमकिन बना रहा है कि हम नया आगाज करें, But this time with people whose faith is tried in the fire and who will trust him. लेकिन इस दफा वो लोग जिनका ईमान आग से आजमाया गया है और वो लोग जो उस पर यकीन रखेंगे। Heaven, transmuted out of the stupidity of tradition, is exciting to anticipate. आसमान जो है जो कि रवायत की हमाकतों से बाला और पाक है, यही इसी की उम्मीद की जाती है। The God who gave us this nature is not capable of existing without meaning and purpose. वो खुदा जिसने हमें ये फितरत दी है वो बगैर मकसद और मानी के कुछ करने के काबिल है ही नहीं। God will put His desire in us. खुदा अपनी ख्वाहिश हमारे अंदर रखेगा। Heaven is what Paul said is the beginning. आसमान पौलुस के मुताबिक इब्तदा है। It's a ship getting out of the dock. ये एक जहाज की तरह है जो कि बंदरगाह से निकलता है। If there is no eternity, you and I are fools to be Christian. अगर अब्दियत का वजूद नहीं है तो मैं और आप मसीही होते हुए बेवकूफ हैं। But if eternity exists, it's insanity not to prepare for it. लेकिन अगर अब्दियत का वजूद है तो फिर उसके लिए तैयारी ना करना पागलपन है। God gives you the capacity to get wealth. खुदा आपको गुंजाइश बख्शता है कि आप दौलत हासिल करें। Whom the Son set free is free indeed. जिसको बेटा आजाद करे वो हकीकत में आजाद होगा। God gave 15 tons of bread every day to the Israelites. खुदा हर रोज 15 टन रोटी इसराइलियों को देता था। He said to them, bake me 12 loaves once a week. और उसने उनसे कहा कि हफ्ते में एक दफा मेरे लिए 12 रोटियां बनाओ। The unbelieving people stopped doing that. बेईमान लोगों ने ऐसा करना छोड़ दिया They lost everything. और वो सब कुछ से हाथ धो बैठे। God gives us a principle, then He adds the promise, what do you do for us? खुदा हमें एक उसूल देता है और फिर उसके साथ वो एक वादा जोड़ देता है कि वो हमारे लिए क्या करेगा। But He will only do for us when we work with the principle. लेकिन वो हमारे साथ उसी वक्त काम करेगा जब हम उसके उसूल पे चलेंगे। Because that principle is a means by which we live and get by. क्योंकि ये उसूल ही वो है जिसके वसीले से हम जिंदा रहते और आगे बढ़ते हैं। If we'll simply pay Him His first interest, the tithe, everything अगर हम उसे उसका वो जो सूद है वो देंगे जो कि दायकी है else will work. तो सब कुछ कामयाब होगा। He not only gives us that promise, वो ना सिर्फ हमें ये वादा बख्शता है, He creates the opportunity for us to put faith into motion वो हमारे लिए मौका पैदा करता है कि हम ईमान को हरकत में लाएं in the simplest, ordinary behaviors of life. जिंदगी के सादा तरीन और आम रवैयों में। That is what to do with our money. ये जवाब है कि हमें हमें अपने पैसे के साथ क्या करना है। He transubstantiates it into eternal rewards that compound. वो इसे उन अबदी अजर में तब्दील कर देता है जो कि जमा होते हैं।
The reason the judgment seat of Christ comes as the last event of history खुदावंद यीशु मसीह की अदालत के तख्त के तारीख में आखिरी काम होने की वजह क्या है? is because the rewards accrue to the last. वो ये है कि जो अजर हैं वो आखिर पे दिया जाता है. Paul is getting richer every day. पौलुस हर रोज दौलतमंद होता जा रहा है. There isn't any place in the world this principle is truer than in eternity. और दुनिया में कोई ऐसी जगह इससे ज्यादा हैसियत नहीं रखती जिसमें ये असूल सच साबित और वो अबदियत है. The rich get richer and the poor get poor. अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होते जाते हैं. Paul is rich, rich in faith that is, and getting richer every day. पौलुस दौलतमंद है, ईमान में दौलतमंद है, यानी वो हर रोज दौलतमंद होता जा रहा है. Because anytime anybody preaches on Paul's writing and lives and lives are touched, क्योंकि जब भी कभी भी कोई शख्स पौलुस की तहरीरात पर तसनीफों पे मुनादी करता है और जिंदगियां उससे बदलती हैं, God adds more to that account. तो खुदा पौलुस के अकाउंट में खाते में और ज्यादा बरकत डाल देता है. Paul sat in prison and believed God. पौलुस जेल खाने में बैठा था और खुदा पर ईमान रखता था. Rome seemed not to listen, रोम लगता है कि वो सुन नहीं रहा था, but the boundaries of his reaping eternity expanded while he was in prison. लेकिन अब्दियत को हासिल करने के लिए उसकी जो हदें थी वो बढ़ती जा रही थी हालांकि वो जेल में बैठा था. Like the Philippian Christian, फिलिपी मसीहों की to तरह support a ministry that's brought life to you, ऐसी खिदमत की इमदाद करना जिसने आपको जिंदगी बख्शी है, keeps compounding until Jesus comes. वो बढ़ती रहती है जब तक मसीह यीशु वापस ना आए. There's simply no activity of mankind इंसान की कोई सरगर्मी ऐसी नहीं है for which God has opened as many doors जिसके लिए खुदा ने इतने दरवाजे खोले हों to lay up treasures in heaven कि आसमान पर अपने खजाने जमा करे, which will compound throughout time. जो कि वक्त के वसीले से वो बढ़ते जाएंगे. Satan has moved in and warped this principle in the church इब्लीस ने अंदर आकर कलीसिया में इस असूल को खराब कर दिया है, turning it into a degenerate thing to bring shame to God. और इसको उसने ऐसा बना दिया है कि वो खुदा के लिए शर्मिंदगी का बायस है. Thank God for the Philippians. फिलिपियों के लिए खुदा उनका शुक्र हो. The Corinthian letter says, ग्रंथियों का खत कहता है, if you don't have it to give, अगर आपके पास नहीं है देने के लिए the desire is there, लेकिन ख्वाहिश मौजूद है, God sees the heart and knows. तो खुदा आपके दिल को देखता और जानता है. Hallelujah. This is faith. हालेलुया, यही ईमान है.